Hello. Good afternoon, everyone. I am Anuradha from Justtutors. Welcome to today's session, everyone. Today we are going to continue with the crop production and management because last time we were studying, we have covered some of the topics of crop production and management, and today we will start from adding manures and fertilizers, irrigation, protection to weeds, harvesting, and storage. So, we are going to cover all these topics today. So, let's get started. So, let's start with the very first topic that we are going to learn today, that is adding manure and fertilizers. So, let's read this. So, to provide sufficient or essential nutrients to the soil, we add manure and fertilizers to the soil. So, I hope you remember last time we were studying about adding manures and fertilizers, and that we studied it is really essential for the soil to be fertile so that crop production will be very, very nice, and there would be no insects, or the plants will not be affected by any kind of weeds. Okay, so for that, to provide sufficient or essential nutrients to the soil, what we do, we add manure and fertilizer to the soil. So हम अपने मिट्टी पे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स, उसमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि हमारे बॉडी में जैसे हम खाना खाते हैं तो वी नीड different types of nutrients, vitamins, and minerals. So, different vitamins are like vitamin A, B, K, D, and all. And if I talk about proteins, there are many proteins rich food that we get from dairy products such as cottage cheese, paneer, and then from meat also we get protein. So, जिस तरीके से हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो एंड क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो. सो आई होप यू अंडरस्टूड क्यों हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स सॉइल में ऐड करते हैं. नाउ, so it is really important to add manure and fertilizer, as I told you just now. And why? Because in some places the soil has less nutrients for crops because the farmer grow crops after a crop in the same field. So what happens, kabhi kabhi farmers, what they do, like एक ही खेत में, एक ही फार्म में, मान लीजिए इस साल उन्होंने वीट की खेती की एंड अगले साल उसी जगह पे वो राइस की खेती करते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है एंड उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे कम हो जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैन्योर का इस्तेमाल हो रहा है एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है विद द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, and these are the crops that you can see over here. So now we will just move on to the next slide. यहाँ पे हमने देखा adding manures and fertilizers क्यों essential है हमारे soil के लिए and crop production के लिए. अब हम थोड़ा देख लेते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. So manures are like they are obtained from decomposition of plants or animal waste. So it
obtained from decomposition of dead plants. जो भी plants मर जाते हैं तो आपके soil में वो decompose हो जाते हैं, and any kind of animal waste such as cow dung, any kind, like कोई जानवर मर भी जाते हैं तो they just get decompose inside the soil so as to get the fertility. Now, what is fertilizer? So these are chemical substances produced in the factories. So manures तो अपने आप प्रोड्यूस होते हैं, बट जब हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको फैक्ट्रीज से प्रोवाइड की जाती है. नाउ, use of manure makes the soil fertile as it provides a lot of humus to the soil. So अगर हम manure का इस्तेमाल करते हैं soil में तो हमारी जो soil है काफ़ी fertile होगी and it provides lots of humus. Humus मतलब होता है एक fine layer of the soil. Now, fertilizer से क्या होता है? So it makes the soil less fertile as it does not provide humus to the soil. So क्या होता है जब हम manure add करते हैं तो हमारी जो सॉइल की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है जब फर्टिलाइजर्स हम करते हैं इस्तेमाल तो वो जो हमारा सॉइल जो होता है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया है वो काफ़ी लेस फर्टाइल होता है in compared to manure. Now, manure is comparatively less rich in plant nutrients and fertilizers are very rich in plant nutrients. So जब हम बात करते हैं nutrients की तो fertilizers में ज़्यादा मात्रा में nutrients होते हैं but manures में कम मात्रा में nutrients होते हैं. तो दोनों के pros and cons हैं. That is the reason we need to use both the products, manures also and fertilizers also. So I hope you understood till here. You understood about the difference between manures and fertilizers. अब हम चलते हैं next दूसरे टॉपिक की ओर. इस इधर पे हमें ये पता लगेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. मतलब जब हम मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल में तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. सो नाउ, enhances the water holding capacity of the soil. So water holding capacity काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो enhance करता है अगर आप manure का यूज़ करते हैं. And it improves the texture of the soil. So soil की texture भी improve होती है and it increases water holding capacity of the soil. कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी plain होती है and whenever you pour water, what happens? It just goes away, मतलब वहाँ से हट जाती है पूरी. तो यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं होगा अगर आप मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे. आपका जो सॉइल का टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड व्हेन यू add water to it, the soil will not move anywhere. It will be at one place only. Now, and ये renewable भी है and eco-friendly भी है. And we also have rhizobia bacteria and leguminous plants which help to fix atmospheric nitrogen. So rhizobia नाम का एक बैक्टीरिया है एंड एक प्लांट है जिसका नाम है लेग्यूमिनस प्लांट. वो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. जैसे नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस चीज़ को ये यहाँ पे फिक्स करता है. सो आई होप यू आर क्लियर हियर कि मैन्योर के एडवांटेजेस क्या है और वो क्या करता है. सो नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप rotation. So to restore the former level of soil, we can use the technique of crop rotation, which is basically growing crops alternatively. So to level soil का जो level होता है उसको restore करने के लिए एक टेक्निक होता है जिसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन. उसमें क्या होता है बेसिकली हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं ऑल्टरनेटिवली. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन के बारे में. सो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन के बारे में. सो व्हाट इज़ इरिगेशन? सो जनरली इरिगेशन इज़ द मेथड इन विच वाटर इज सप्लाइड टू प्लांट्स. सो इरिगेट करना, जैसे आप प्लांट्स को वाटर दे रहे हो, सप्लाई वाटर कर रहे हो, उसे हम इरिगेशन कहते हैं. नाउ वी नो
प्लांट्स कंटेन 90% ऑफ वाटर. सो हम सबको पता है कि 90% पानी plants के अंदर होता है. So water is essential as germination of seeds does not take place under dry condition. So पानी काफ़ी ज़्यादा important है during the germination of seeds. And this doesn't take place, मतलब आपके seeds germinate नहीं होंगे कहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा dry condition है. ऑब्वियस सी बात है, जब प्लांट्स में पानी नहीं होगा तो प्लांट्स कैसे उगेगा. तो जब जब हम सीड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर एंड वाटर होनी चाहिए ताकि आपके सीड्स जल्दी से ग्रो कर सके. ना सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. सो यहाँ पे दो सोर्सेज बताए गए हैं. जो पहला सोर्स है वो है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन. सो जब मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल की जब बात आती है तो आपको ये पता ही होगा पहले ज़माने में, लाइक पुराने ज़माने में वेल्स का इस्तेमाल होता था, हैंड पंप का इस्तेमाल होता था, चेन पंप्स का इस्तेमाल होता था, पॉन्ड्स एंड लिवर सिस्टम, एंड यू माइट बी नोइंग देखली का भी इस्तेमाल होता था फॉर irrigation. So now let's move on to the modern source of irrigation. So modern source में काफ़ी सारी changes आ गए हैं और वहाँ पे आपका स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम लगा दिया गया है. सो यहाँ पे आपका पॉन्ड, वेल एंड चेन पंप एंड लिवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है. यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं. एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम. So let's get started with this. So yeah, so what is a sprinkler system? So it is basically spraying small amount of water all around the fields. So कम मात्रा में पानी का छिड़काव around the fields with small pipes. So यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम. सो यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर भी देयर स्मॉल पाइप और उससे स्प्रिंकल हो रहे हैं वाटर वेरी स्मॉल अमाउंट में. सो इस सिस्टम को हम कहेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम. एंड इन दिस सिस्टम वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल ऑफ पाइप. सो ये पाइप है. सो पिक्चर क्लियर नहीं है बट यहाँ पे एक नोजल होती है, नोजल से आपकी पानी फ्लो करती है. Flow in the sense it just sprinkles, not flowing. So spray की तरह sprinkle होती है यहाँ पे. So इस system को हम कहते हैं sprinkler system. Now we are just moving to the next system that is known as drip system. So in this system drops of water will be provided near the roots. So यहाँ पे आप plants देख सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ यहाँ यहाँ. तो उसके पास आप एक पाइप देख सकते हैं. So ये जो पाइप है, पाइप के बीच में there's something जहाँ से आपकी थोड़े ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रोवाइड किए जाते हैं सबके जड़ों में, सारे प्लांट्स के जड़ों में. So it is more efficient in the areas which has limited water supply. जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे इस पाइप का इस्तेमाल होता है, I mean इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है which is called as drip system. So हमने दो मॉडर्न सिस्टम पढ़े हैं इरिगेशन के. तो पहला वाला है ट्रेडिशनल है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज. सो सोर्सेज में पहला ट्रेडिशनल सोर्स जो कि हम पहले ज़माने में हैंड पंप्स का इस्तेमाल करते थे, वेल्स का इस्तेमाल करते थे, देखली का इस्तेमाल करते थे. एंड मॉडर्न में जब कुछ चेंजेस आए तो वहाँ पे दो सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, एक स्प्रिंकलर एंड एक ड्रिप सिस्टम. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट इरिगेशन. तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन टू वीड्स. सो पहले तो हम जानेंगे कि वीड्स क्या होते हैं. सो वीड्स आर नथिंग बट दे आर अनवांटेड प्लांट्स
जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं हमारे प्लांट्स के साथ, उसे हम कहते हैं वीड्स. सो अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स एंड द रिमूवल ऑफ सेम इज कॉल्ड वीडिंग. सो जब उसे हम रिमूव कर देते हैं, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज weeding. So I hope you are clear over here what is called weeding and what are weeds. So weeds are nothing but they are unwanted plants that grows near the crops that you have grown, and this can be removed by the process that is known as weeding. So weeds compete with crops for space. So क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए जो भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा ग्रासेस आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ग्रासेस जो होते हैं सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स वो सक कर लेते हैं. दैट इज़ वाई वीडिंग का इस्तेमाल होता है, ताकि उन सारे unwanted plants को remove कर दिया जाए. So weeds compete with crops for space and nutrients, water and light, and they can be poisonous as well. So इसीलिए weeds को हम निकाल देते हैं. So some example of weeds are, so कुछ examples दिए गए हैं weeds के, वो हैं grass, wild oats, quack grass and etc. So चलिए हमने फर्स्ट कवर कर लिया प्रोटेक्शन टू वीड्स. सो वीडिंग क्यों किया जाता है एंड वीड्स किसे कहते हैं, ये हमने इस पैराग्राफ में सीखा. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वीडिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज. सो कुछ तरीके होते हैं वीडिंग करने के. तो पहला तरीका हम देखते हैं. सो वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय रिमूविंग द वीड्स बाय हैंड. सो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको आप अपने हाथों से निकाल दो, ये पहला आपका तरीका हो गया. एंड वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स आर mixed with water and then sprayed in the fields. So weedicides से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. उसे पानी में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, तो उससे क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स सारे सूख जाते हैं. सो चलिए हमने इस स्लाइड में देख लिया हम कैसे वीड से अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड हमने ये देखा किस किस प्रोसेस से हम वीड्स को निकाल सकते हैं. नाउ वी आर नाउ मूविंग to the next slide, and let's see what we are going to learn in this slide. So yeah, let's get started. So in this, so today the third topic that we are going to learn is harvesting. So after irrigation, when crops are fully grown, सब क्रॉप्स पूरे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग. सो chaff is the husk around the seed and that is generally thrown away. So सीड्स के चारों तरफ आपने देखा होगा, अगर आप जानते हैं, आपने देखे होंगे, अगर वीट देखा होगा तो उसके चारों तरफ हस्क होते हैं, उसे हम निकाल देते हैं. तो उस निकालने के प्रोसेस को भी हम इसमें कवर करेंगे. Now, the cutting and gathering of the crop after it is matured is called harvesting. So as I told you, जब हमारे सारे crops grown हो जाते हैं fully हर तरीके से, उसमें फसल उग जाते हैं और वो सूख भी जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हमारा आता है हार्वेस्टिंग की बारी आती है. And then in harvesting we'll just remove all the crops that are grown. सो आप एक तरह से राइप भी कह सकते हैं, पक जाते हैं फसल, तब जाके हम उसे निकालते हैं. सो इट कैन बी डन बाय सिकल और मशीन. सो दो तरीके से इसको किया जा सकता है. पहले सिकल से कर सकते हैं, नहीं तो मशीन का इस्तेमाल करके हम इसे कर सकते हैं. नाउ harvested crops grain needs to be separated from half and this process is called threshing. So जिस तरीके से हस्क चारों ओर हो जाते हैं सीड्स की, so उसको भी हमें रिमूव करना है to get the whatever we have grown. If for example if you have grown wheat, so wheat के चारों तरफ आपके हस्क हो जाते हैं, उसे हमें रिमूव करना होता है. उस प्रोसेस को हम कहेंगे
थ्रेशिंग। सो अब हम जानेंगे थ्रेशिंग क्या होता है इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर इज अ मैन who is holding a machine and he's just moving. He's sitting on the machine and he's driving over there. So let's see what is it. So threshing can be done with the help of machine called combine. So इस machine को हम कहते हैं combine machine, and which is in fact a combined harvester and thresher. So it can also known as combined harvester and thresher. So इसके इस्तेमाल से हम अपने जितने भी क्रॉप्स हैं उसको आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग अब आती है बारी स्टोरेज की। सो देखते हैं स्टोरेज में क्या क्या होता है। So yes, so the crop should be kept safe from the moisture, insects, rats and microorganism. So जब हमारे क्रॉप्स को अच्छी तरीके से काटने के बाद उसे हम थ्रेशर से पूरा निकाल देते हैं, अब आती है हमारी बारी उसको सेफली स्टोर करने की। तो जब हम इसे सेफली स्टोर करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो फसल उगा हुआ है वो उसमें नमी ना आ जाए, लाइक मॉइस्चर ना आ जाए, और इंसेक्ट्स और रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट ना कर जाए। उस वजह से देर आर सम थिंग्स टू बी टेकन केयर. So the fresh crops has more moisture, so they should be first properly dried in the sun before storing, so as to prevent grains from any kind of attack by the pest, insects, etc. So सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी अनाज होती है उसे हम अच्छे से धूप में उसे अच्छे से सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद हम उसे स्टोर करते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट, insects or microorganisms. And now large scale storage of grains is called silos and granaries. So जहाँ पे आपके जितने भी grains हैं large amount में store किए जाते हैं, वहाँ उसे कहते हैं हम silos and granaries. So let's learn about silos and granaries. So what are silos and what are granaries? So आप यहाँ पे देख रहे होंगे vessel. There's a vessel. It's a kind of steel vessel or aluminium, you can say that. So इसके अंदर हम जितने भी grains हैं वो रखते हैं, and granaries are nothing but they are sacks. So we just put all the grains inside the sacks. So इसे कहते हैं हम silos and इसे कहते हैं हम granaries. So now we are going to read about this. So to store large quantities of grains, specific chemical treatments are required to keep them safe from pests, insects, rats and microorganisms. So large amount of grains को स्टोर करने से पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो किए जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल एंड इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट ना कर दे क्रॉप्स को, तो कुछ स्प्रे किया जाता है वहाँ पे, लाइक पेस्ट कंट्रोल समझ लीजिए, एनी काइंड ऑफ chemical treatment can be done to
protect the crops from getting spoiled by insects, microorganisms, rats, and different type of, you can even say it, insects. सो ये होता है सिलोज एंड ये होता है ग्रेनरी. सिलोज बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और स्टील, और ग्रेनरीज आपके बोरे होते हैं. बोरों के अंदर आपके सारे क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है एंड पेस्ट कंट्रोल डाला जाता है उसमें. नाउ let's move. So these are your practice questions. So let me just conclude the topic. आज के टॉपिक में हमने पढ़ा इरिगेशन के बारे में, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, एंड देन हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी पढ़ा, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज भी पढ़ा हमने. सो हमने ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक कवर कर लिया है क्रॉप मैनेजमेंट का. तो यहाँ पे देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. दैट इज the term used for the process of separation of grains from chaff is called. So what is that term that we have learned? So आपका आज के लिए ये homework हो गया. The first question. Second one is name two methods of irrigation which conserve water. This would be your second question. If you want, you can just take the not snip, you can just take like write it. Either you can write or take a photo of this. And now, what are weeds and how we can control that? Explain crop rotation and define storage and name two places that mostly use for storage. So just now we have learned about storage. So ऐसे कौन से दो नाम हैं, दो स्टोरेज हैं जहाँ पे हम लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप को स्टोर करते हैं. सो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क मी. Okay, and there's one more thing I just want to share here. So जैसे कि अगर आपको कोई भी टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको गो थ्रू करना है, तो आप हमारे जस्ट ट्यूटर्स के साइट पे जा सकते हैं. there is nothing to do. You can just put justtutors.com and then you'll get the page. I'll show you how to do it. Oh, wait a sec. जस्ट ट्यूटर्स आप डालिए. डालने के बाद आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा. जस्ट ट्यूटर्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर किड्स फ्रॉम grade 1 to 10 CBSE. जस्ट यू कैन ओपन एंड यहाँ पे आपके काफ़ी सारे चीज़ें हैं. यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम हियर. देयर आर सम फ्री स्टडी मटेरियल्स. यू कैन जस्ट लुक ऑन दिस. अगर आपका CBSE है, ICSE है, IGSE है or US curriculum hai, you can even explore that also. And there are two textbooks, that is maths and science, that is available. And you have got textbook solution also. So you can just go through the page. I'll just show you. यहाँ पे मैंने क्लिक किया. अब हम मान लीजिए हमें साइंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो आपकी क्लासेस यहाँ पे दी गई है. क्लास 6, 7, 8, 9, 10. So if you want 6th class solution from science, you can just click on that. And then आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपके chapters name है सारे. Food, where does it come from? Fiber to fabric. So I'll just show you. तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके फ्री स्टडी मटेरियल्स एंड सॉल्यूशन सारे यहाँ पे आ जाते हैं. सो टॉपिक वाइज है आपके स्टडी मटेरियल्स ऑल्सो. You can just click on this. So these are the learning videos you can find over here. And then so यहाँ पे so food variety पे चलते हैं हम. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे वर्कशीट हैं जहाँ पे आपके क्लास 6th to 10 के सारे
NCRT exercises available है. You can just look and get all the answers from here. You can use this. And दूसरा आपका है package. So आप packages भी खरीद सकते हैं हमसे from class 1 to class 10. Now, and when it comes to testing your knowledge, so if you just want to test your knowledge, you can just go to any curriculum, CBSE, ICSE, any syllabus you can opt. If you want to start from maths, you can just click on maths and class 6. And now I'll show you how it comes. So मान लीजिए आपको अपना knowledge check करना है knowing your numbers में. So you'll just have to click on that. And then जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पे आपका आ जाता है. There are 10 questions. So MCQ questions होंगे 10 minutes के लिए and marks होंगे. So ये आपने यहाँ पे open कर दिया and you'll get all the questions. See, the predecessor of 1 million is what? You can just click on that and you'll get to know about. You can get to know about the knowledge that you have about the particular topic. So यहाँ से आप test your knowledge भी कर सकते हैं. And next चलते हैं हम worksheet की तरफ. So it's really easy to use our platform. You can just explore our platform for your use. So मान लीजिए worksheet मुझे खोलनी है for example science की, तो worksheet मैं खोलूँगी तो वहाँ पे आपकी classes होंगे. तो for example I want to study, I'm from 8th class and I want to look at the worksheets of 8th class science. तो यहाँ पे आपके chapters दिए गए हैं. तो मान लीजिए जो आज हमने पढ़ा crop production and management, we'll just open that. And open करने के बाद so यहाँ पे crop, यहाँ पे introduction दिया है, crop and its types, basic practices of crop production, preparation of soil, plow, sowing and all. तो चलिए हम देखते हैं sowing के इसमें क्या दिया गया है. So आपका topic by topic सारे आपके worksheets create किए गए हैं. So define crop, explain the. So these are the questions and अगर आप next पे जाएंगे you'll get all the answer of these questions. So जैसे कि आप यहाँ पे okay next करेंगे हम. तो you'll get the worksheet and इसके solution भी है यहाँ पे. सो हमारे कुछ कोर्सेज हैं, वो है मैथ्स के कोर्स, इंग्लिश एंड साइंस. तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ले सकते हैं. देयर आर डिफरेंट पैकेजेस. सो you can just explore our Justtutors. And if you liked my video or today's class, do subscribe my channel. And now I'm just going to end the session. So again एक और बार कंक्लूड कर देते हैं. तो आज हमने क्रॉप मैनेजमेंट पूरा ख़त्म कर दिया, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो वी कवर्ड फ्यू टॉपिक्स, दैट इज़ एडिंग मैन्योर्स एंड देन इरिगेशन, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. हमने सारे कवर कर दिए हैं. सो आई होप यू लाइक्ड द सेशन एंड do subscribe to our Justtutors channel again. And I just need to tell you one more information. So कल की क्लास में हम मैथ्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग quadrilaterals from class 8th. So there are different types of shapes. In that lesson we are just going to cover that one. So do present at the same time. Till then, bye bye and take care.